Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, and today we'll be starting with the new series of the subject that is Business Studies for class 11. So Business Studies, that is a new subject for ISC students this year, because now the commerce subject of class 11 has been converted into Business Studies. The council has done a little चेंजेस इन द सिलेबस. कुछ कॉन्सेप्ट 12 का 11 में डाल दिए, 11 वाला 12 में डाल दिए, कुछ चैप्टर्स उन्होंने रिमूव भी कर दिए. तो फर्स्ट वील हैव अ basic go through of the business studies syllabus, and then we will start with chapter 1. Okay, so business studies, that is for class 11. Now this is for 11 because earlier yes there was a subject business studies, but उसका जो concept था वो बहुत different था, and it was obviously not as much popular in the entire nation as compared to commerce was, क्योंकि commerce ज़्यादा बच्चों के पास था. So now this is the newest subject for the students for class 11. Few students जो जिन्होंने हमेशा से कॉमर्स ही लिया था या कॉमर्स के ही बारे में सुना था, मोस्टली इन मैनी ऑफ द स्कूल्स. सो यू ऑल विल बी स्टडिंग दिस. यू कैन see means the new books means old books so cannot be arranged. So now we are going to start with the syllabus of it. तो सबसे पहले है the first chapter, that is business meaning, features and objectives. Okay, whatever is given बहुत basic आपको इसमें पढ़ना है. तो I'll be explaining you all the things along with the pictures so that you are able to understand the concepts. Next is classification of business activities, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में एंड कॉमर्स के बारे में. So this will be industry and the section of commerce. Then the business ethics and corporate social responsibility, जिसमें we will be understanding कि किसी भी firm की कौन सी responsibilities होती हैं and how the company governs that, means how the companies act उस चीज़ को govern करती है. Then forms of organization, जिसमें private public sector comes. ठीक. Then sole proprietorship, that is one person business. Then partnership, that is again two-person business. ठीक. Joint stock company, that is a voluntary association that has to be registered under the Companies Act 2013. Then formation of company, that is the steps required in the complete formation of the company. Cooperative organization, that tells you कि cooperative societies कैसे form होती हैं. Next is public sector undertakings and global enterprises. Okay, and then e-business, the scope of e-business. Now this is a new concept that has come into this e-business, e-commerce. मतलब e-commerce में था, लेकिन yes, this is still a very trending concept, e-business and e-commerce. Then e-banking. Then this is the one जो commerce में class 12 में था, but now it is in class 11 और next year ये class 12 से नहीं होगा. So wholesale trade, the trade sector has come here, जिसमें we will study about the bulk buying of goods and services. Retail trade, जो small quantities में buy and sell होते हैं. Then business risk and the insurance, what is insurance, insurance के principles क्या होते हैं, and the types of insurance, that is life insurance as well as non-life insurance. Okay, so these are the 17 chapters that are there in your syllabus for business studies starting from this year, that is 2026. Okay, so now we will move towards the main chapter, that is business meaning, features and objectives. तो सबसे पहले हम इसके बारे में इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो हम कहाँ से उसको शुरू करते हैं. तो वील अंडरस्टैंड इट वेरी लाइक एकदम ही ग्रास रूट से हम उसको शुरू करेंगे. तो सबसे पहले वील अंडरस्टैंड कि देयर इज़ एन एक्टिविटी. ठीक. एंड दिस एक्टिविटी, कोई भी काम है ये किसके द्वारा किया जाता है, हु इज़ अ पर्सन हु डज दैट. तो इट इज़ ह्यूमन बींग्स हु डू दीज एक्टिविटीज़. ठीक. अब एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो दो पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, that is done for earning a living, you can say money or something. And then is a non-economic activity that is done for personal satisfaction.
ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ डन फॉर अर्निंग अ लिविंग एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ये लास्ट ईयर तक कॉन्सेप्ट्स में था, बट नाउ दिस हैज़ बीन रिमूव, बट दिस इज़ अ ग्रास रूट कॉन्सेप्ट दैट यू आर supposed to understand so that you can move towards the concept of business, because business कुछ students sciences से class 11th में they shift towards commerce for a better career option or whatever reasons they have. So उनके लिए ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिनको समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप कहते हो कि अर्निंग अ लिविंग की बात हो रही है, तो वी कैन से द एग्जाम्पल ऑफ अ वेजिटेबल सेलर. वो मार्केट में सामान बेचता है बिकॉज उसको पैसे कमाने हैं. कोई लेबर हो जाता है इसमें, एनी पर्सन हु इज़ अर्निंग फॉर अ लिविंग. देन एनी ऑफ द काइंड ऑफ एग्जाम्पल लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, जो भी इंसान, एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट द पर्सन डज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लिविंग, मनी, वो सारी चीज़ें किसकी में आ जाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं. देन वी विल मूव टूवर्ड्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में यू कैन अंडरस्टैंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन है. सो सपोज करो यू कैन लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, मॉर्निंग वॉक. ठीक, योर ओन स्टडीज़, मतलब कोई भी चीज़ जिसके लिए यू आर नॉट अर्निंग द मनी और यू वॉन्ट योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, यू स्टडी. ठीक, यू गो टू एनी रिलीजियस प्लेस, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं पर भी, चर्च इवन. ठीक, रिलीजियस प्लेस पे यू गो. तो एनी ऑफ द पेट्रियाटिक थिंग्स यू डू, इवन सॉन्ग सुनना, फ्लैग खरीदना, बैच यहाँ पर लगाना ड्यूरिंग द नेशनल हॉलीडेज, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. अब हम इसके फर्दर जाते हैं कि हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो अगेन 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. द फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, जिसको हम पढ़ेंगे. द सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड वन is employment. When you're talking about the first one, that is any of the business activity, economic activity done to earn a living, that is on a regular basis. ठीक, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए. तो रेगुलर बेसिस पे जब आप कोई भी काम करते हो फॉर अर्निंग मनी, ऑब्वियसली मनी इज़ द मोटिव, वी कैन से हेयर प्रॉफिट. ठीक, उसको हम बिजनेस कहते हैं. अगेन अ वेजिटेबल सेलर और एनी ऑफ द बिजनेस मैन, कोई शॉपकीपर है तो वो किसके पार्ट में आ जाता है? बिजनेस के पार्ट में आ जाता है. देन नेक्स्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? एनी ऑफ द सीए, जिसने कंप्लीट स्टडी की हो चीज़ों की. ठीक, लॉयर्स जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ हो, और टीचर 2 years 3 years का उन्होंने एक प्रॉपर कोर्स किया हो और दे आर रजिस्टर्ड अंडर अ पर्टिकुलर एसोसिएशन. ओके, किसी भी, जैसे CA, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, तो दैट इज़ नोन एज प्रोफेशन. एंड ये जैसे ये इनको क्या मिलता है अपने मतलब टास्क के लिए, बिजनेस पीपल को, बिजनेस पर्सन को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. इनको अपने काम के लिए क्या मिलती है? फीस मिलती है. ओके, देन द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट. इफ़ एनी पर्सन, अब सपोज करो एनी लॉयर इज़ है, तो ही इज़ वर्किंग बाय हिमसेल्फ इन हिज ओन चैम्बर, ही इज़ डूइंग बिजनेस. इफ़ ही इज़ वर्किंग एनी, किसी फर्म में वो काम कर रहा है. ठीक है, किसी एक एम्प्लॉयर के अंडर अगर वो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जो जॉब देता है एंड एम्प्लॉई जो वर्क कर रहा है उसके अंडर. If I am working under some or in an organization under some head, I am an employee. If I am recruiting some person जिसके हम बॉस हैं, I am the employer. So यहाँ पर एक firm में the person is working, he is working for a remuneration. ठीक है, he is working under someone else, other person. तो ही इज़ अंडर एन एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि एक डॉक्टर है हु इज़ वर्किंग इन अ क्लिनिक,
तो ही इज़ वर्किंग, ही इज़ डूइंग हिज ओन, ही इज़ अ लाइक विद अ बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर, तो अगर वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस पर्सन. एंड इफ़ ही इज़ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, जो किसी और का है हॉस्पिटल, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज एन, मतलब ही इज़ वर्किंग एज एन एम्प्लॉयमेंट. ठीक, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब हम लोग इसी में से जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है बिजनेस, अब वी विल मूव टूवर्ड्स दैट. सो बिजनेस में द फर्स्ट थिंग इज़ द मीनिंग ऑफ द बिजनेस दैट यू विल टेक. अब यहाँ से आपका जो असली कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है. सिर्फ एक बेस के जैसे समझाने के लिए आई हैव टेकन ऑल द कॉन्सेप्ट्स. इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच द पीपल आर कंसिडर्ड एज बिजी in earning income, that is either by production, purchase, sale, exchange of goods or services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit. तो क्या बोला गया यहाँ पर, that business includes all the activities undertaken to earning income, whether it can be whether through production, purchase, sale, exchange of goods and services to satisfy the needs of other people, that is known as through earning profit. Okay, then when you are talking about the concepts what you write here, अब एग्ज़ाम में लिखोगे तो क्या what you are going to write, तो this is the main line. ये आपके जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक ही है, C.O.P. गुप्ता बुक. ठीक, तो दैट इज़ द गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, उसी से ही द कॉन्सेप्ट, द स्टेटमेंट्स हैव बीन टेकन. बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन or purchase and sale of goods or services with the object of earning profit. Means whenever any of the activities undertaken to produce something or to purchase, कहीं से खरीदना और कहीं पर बेच देना, and with the object of earning profit, it is known as business. So when you are talking about core human activities, that is earning money or the needs means to satisfying the wants, so इसमें जो कोर प्रोसेस होता है दैट इज़ प्रोडक्शन और परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट, द पर्पस इज़ टू अर्न मनी, हेंस इट इज़ नोन एज it is known as business. ठीक, तो there are certain definitions given. So eventually you can conclude that business is all those economic activities I've already explained you, anything that is used for earning money विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कोई चीज़ को आप बना रहे हो एंड उसके बाद उसको बेच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फर्दर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि वो सारी टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे आर नोन एज बिजनेस. ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें ओनली यू हैव टू स्टडी अबाउट द बिजनेस, इट्स मीनिंग जो हमने आपको समझा दी, then the features as well as the objectives of it. तो now we will move towards the features of business. तो सबसे पहला फीचर कहता है कि dealings in goods and services. अब goods में when you are talking about, तो there are 2 categories of goods, जैसे consumer goods. ठीक, manufactured goods are of 2 categories. Consumer goods, that is clothes, shoes, cigarettes, milk, sugar, tea. Anything that the consumer consumes daily is known as consumer good. एंड प्रोड्यूसर गुड्स, जो जैसे मशीन्स एंड टूल्स होते हैं, ये वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर को काम आते हैं किसी भी फर्दर सामान को बनाने के लिए. सपोज टायर, अगर उनको कार बनानी है तो उन्हें टायर की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स. ओके, बाय सर्विसेज वी मीन द इनटैंजिबल सर्विसेज, जो दिख नहीं सकती हैं, जो इनविजिबल सर्विसेज हैं, विच कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, मीन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड द नेक्स्ट डे. For example, communication, transport, distribution of water, electricity, gas. So these are examples of the services. Okay, so इसी में ही we will take the examples of what are consumer goods. You can see the example, जैसे beverages हैं, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, packaged foods are there, जैसे Oreo, Lay's, सबके brands के name भी यहाँ पर mentioned है. Personal care, Dove, Head and Shoulders, means these are the basic consumer goods that are consumed by the consumer on a daily basis. ठीक, होम केयर में टाइड, सर्फ एक्सेल, देन बेबी केयर में पैम्पर्स, स्किन केयर में निविया, पॉन्ड्स, ओले,
हेयर केयर में सनसिल्क, डव, एंड ओरल केयर में ऑल दिस कोलगेट एंड ऑल. तो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूज्ड. अब इसी में वी विल अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं. सी द प्रोड्यूसर गुड्स. These are the goods that are industrial machinery, the raw material, the components and parts, the industrial tools and equipments. ठीक, ये you can see tractors and all these things, the screws and all. And then the repairs and operations, packaging and consumables, IT and other equipments, chemicals and industrial materials. ठीक, so these are all the examples that are used for building, producing, delivering and growing a specific product. Hence it is known as producer goods. So we will move towards the concept again, जहाँ पर we have understood that consumer goods, producer goods as well as the services जैसे transport services, banking services, all three things are considered under business. जब हम कहते हैं dealings in goods and services होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको खरीद के बेचना है या फिर बना करके बेचना है, but anything has to be sold. Next is the main objective. Obviously there should be profit motive should be there. That is very clear from the definition कि कोई भी आप काम करोगे उसका जो main objective होता है that is profit motive. But profit motive is not the sole objective. It should always be profit motive along with customer satisfaction. Okay, service motive is also can be considered as an objective. So the total revenue, that is total revenue, that is business expenses, and that drives to net profit or that drives to continuity. ठीक है, टोटल रेवेन्यू से जब आप बिजनेस एक्सपेंसेस हटा देते हो तो जो बचेगा दैट इज़ नेट प्रॉफिट, एंड दैट नेट प्रॉफिट हेल्प्स यू इन कंटिन्यूइंग योर बिजनेस फर्दर. Then the third one is economic activity. Yes, all those activities that are included in the engagement of production or distribution of goods and services for a living is known as economic activities. अब economic activities में these are performed to earn a livelihood, and these are performed out of sympathy, affection and love. जैसे mother giving you food is known as an example of non-economic activity. So these are excluded from business. This is included in business. Hence an economic activity, business is considered as an economic activity. अब नेक्स्ट इज़ रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स. रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स आपसे कहते हैं कि कोई भी आप बिज़नेस करोगे वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए. सपोज़ मेरे पास ये एक फ़ोन है एंड व्हाट आई डिड कि अब ये ओल्ड हो गया है तो आई हैव सोल्ड दिस फ़ोन टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स. एम आई कंसिडर्ड अ बिजनेस पर्सन? नो. वाई? बिकॉज ये जो काम है ये हम बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं. आई एम डूइंग इट, कोई एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है. ठीक, दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस कि कभी एक बार आपने कोई सामान किसी को प्रॉफिट पर बेचा, आपने सामान भी बेचा है, आपने प्रॉफिट पे भी बेचा है. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट डन रेगुलरली, हेंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस. तो इफ़ मिस्टर थॉमस सेल्स हिज वॉच एट अ प्रॉफिट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस. इफ़ ही इज़ अ रेगुलर डीलर ऑफ वॉचेस, जब वो रेगुलर डीलर बन जाता है देन ही इज़ कंसिडर्ड, हिज वर्क इज़ कंसिडर्ड एज अ बिजनेस and he will be considered as a business person. तो one time watch sale है, isolated transaction is not a business. Daily regular dealings is considered as business. Then element of risk. Obviously risk and uncertainty are two important features of business. जब आप risk की बात करते हो तो there can be changes in the taste of consumers, the demand of goods and services, ट्रेड साइकिल, सडन चेंज इन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिज़नेस के रिस्क को अफेक्ट करती हैं. सबसे पहले आता है चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. द कंज्यूमर मे नॉट लाइक अ पर्टिकुलर कमोडिटी. द चेंज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. आप देखते हो कि कंज्यूमर्स कोई आपने नया फैशन ट्रेंड शुरू किया, कंज्यूमर्स मे प्रेफर, मे नॉट प्रेफर. चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स ओनली. तो विलन क्लोथ्स की डिमांड विंटर्स में ज़्यादा होती है एंड समर्स में कॉटन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है. ठीक, तो दिस इज़ हाउ द डिमांड चेंजेस. ट्रेड साइकिल्स, देयर इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पर जो मार्केट है बहुत बूम पीरियड होगा, जैसे फेस्टिवल सीजन होता है, पीपल आर मोर लाइकली टू स्पेंड द मनी. एंड सडन चेंज इन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, सडनली जो
जीएसटी एंड ऑल है वो बहुत खर्चा एक्सपेंसिव हो गया है, हैंस ड्यू टू विच द डिमांड ऑल्सो मे फॉल। तो ये कुछ रिस्क होते हैं, द बिजनेस हैज़ टू डील विद दीज रिस्क। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, डिमांड में शिफ्ट, देयर विल बी ट्रेड साइकिल्स एंड देयर आर गवर्नमेंट पॉलिसीज। डिमांड शिफ्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड कि आज आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर है, कल किसी और प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। Okay, then is a sales transfer and exchange of goods and services. Yes, business must involve either आप कोई सामान बेच रहे हो, कोई सामान को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओनरशिप एंड एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। एक मैन्युफैक्चरर है हु इज़ यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर हिज सेल्फ कंजम्पशन और प्रेजेंटिंग हिज फ्रेंड, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज प्रोडक्ट को आपने सेल नहीं किया है, आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, यू हैव नॉट एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू। जब तक द मनी हैज़ बीन रिसीव्ड, द कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। सिमिलरली अ मदर फीड्स अ चाइल्ड, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी until and unless the same women feeds the children for some consideration, then only it will be considered as a business activity. So whatever goods and services are provided to the market, they should always be exchanged for a money or capital value. उसकी जो भी value है वो उसको मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी आपसे क्या कहता है, दैट दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जिसमें बिजनेसमैन, कंज्यूमर्स, नेशंस ऑल बेनिफिट विद द यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है किसी भी चीज़ की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। ओके, वांट सेटिस्फाइंग पावर, इसको समझो। अगर ये फ़ोन मुझे किसी भी तरीके से मेरी कोई भी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इट हैज़ अ यूटिलिटी। सपोज द टैबलेट, द मोबाइल फ़ोन, द लैपटॉप ऑन विच यू आर राइट नाउ, वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ यूज़ इट इज़ डूइंग, तो इट विल बी नोन एज यूटिलिटी। तो बिजनेस इज़ ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे फॉर्म यूटिलिटी, हमने किसी भी वुड को लिया, लकड़ी को लिया और उसका हमने क्या कर दिया, फर्नीचर बना दिया, टेबल और चेयर बना दिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया, इट इज़ नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। देन दैट इज़ डन इन द इंडस्ट्री हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लेस यूटिलिटी, कोई भी चीज़ है जो अभी प्रोड्यूसर के पास है, प्रोड्यूसर से वो गई कंज्यूमर की तरफ, तो हमने क्या किया, कोई चीज़ प्रोड्यूसर के पास, या प्रोड्यूसर तो कोका कोला नहीं पी जाएगा सारी की सारी, तो इट हैज़ टू बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर्स जहाँ पर भी वो हैं। तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इट इज़ गोइंग, इट इज़ नोन एज प्लेस यूटिलिटी विच कैन बी डन थ्रू ट्रांसपोर्ट। एंड द टाइम यूटिलिटी, कोई चीज़ है जो अभी हमें नहीं चाहिए। अब सपोज़ करो कि मैंगोज़ आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीज़न, बट जो मैंगो ड्रिंक्स हैं वो पूरे साल यूज़ होती हैं, ठीक। तो अभी हमने इस समय हमने मैंगो ड्रिंक्स को उस टाइम पर बना दिया व्हेन द मैंगोज आर कमिंग ड्यूरिंग मानसून्स एंड देन दीज आर बीइंग सोल्ड फॉर द एंटायर सीजन। तो उस टाइम तक क्या होता है, इसको हम स्टोर कर देते हैं, सामान को सेव कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज टाइम यूटिलिटी, दैट इज़ डन थ्रू वेयर हाउसेज। कोई ऐसे सामान होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, पूरे साल बनेंगे, लेकिन उनका जो सेलिंग करना है वो कब होता है, ओनली ड्यूरिंग द विंटर। सो ड्यूरिंग फॉर उसके अलावा जो उसका ऑफ सीजन टाइम पीरियड है उसमें हम उसको सेव करके रखते हैं वेयर हाउसेज में। देन बिजनेस इज़ बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आप बिजनेस की स्टडीज़ भी करते हो, जब आप MBA करते हो, BBA करते हो, तो आप उसके बारे में पढ़ भी रहे होते हो कि हमको अपना मैनेजमेंट जो है वो अच्छा कैसे करना है। आप उसमें HR भी पढ़ोगे, फाइनेंस भी पढ़ोगे, मार्केटिंग भी पढ़ोगे, ऑपरेशंस भी पढ़ोगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स भी पढ़ोगे कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डेटा। So these sciences, the cause and effect relationships you do. Then it is an art as well. Art that says that there should be practical application of it. Practical application मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हमने सीखा MBA में, जब मेरी जॉब लग गई तो मैंने उसको सिखाया, आई एम अप्लाइंग दोज थिंग्स, दैट इज़ नोन एज उसको अप्लाई करना, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो बिजनेस इज़ बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक। देन इज़ द वाइड स्कोप, येस इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप बिकॉज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो इट विल कम कि इसमें इंडस्ट्री भी आती है, इसमें कॉमर्स भी आता है,
एंड फिर उसका फर्दर डिविजन भी इसमें यू विल अंडरस्टैंड. ओके, तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. अब ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आपने एक बार जो उसके मतलब फीचर्स है वो पढ़ लिए, वो अगर आपको समझ में आ गए तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव मोर दैन जस्ट ईटिंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग. तो ये कोई भी मतलब इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव ओनली until and unless your customers are satisfied. तो इसी के ही बेसिस पे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दोज आर गिवन इन 2 पार्ट्स. सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएटिंग कस्टमर्स, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड इनोवेशन एंड ह्यूमन नीड्स. एंड सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे बेटर क्वालिटी गुड्स, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्कर्स वेलफेयर एंड ड्यूज, एंड यू कैन से एनवायरमेंट को सेफ रखना. ठीक, तो एनवायरमेंट सेफ्टी इज ऑल्सो अ सोशल ऑब्जेक्टिव. नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट. द फर्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट. येस, mere earning profit cannot be considered as a business, but yes, a little profit has to be earned because it is considered as risk reward. It is necessary for existence and growth of the business, but it should only be done through the satisfaction of customer wants, not with the satisfaction of human wants. तो risk का reward, existence और growth finance, all these things include profit. हम तीनों चीज़ों को मिलाते तो हमें मिलता है profit. Then creating customers. Creating customers means yes, if the business has to survive, it can only survive if there is a demand for goods and services in the economy. So there must be satisfaction as well as the retention of customers. आपके customers कहीं दूर भाग करके नहीं चले जाएं. Customers are created through advertisement, through sale and promotional activities. तो promotion can help in customer demand and it can further help in earning profit also. And then next is maximum utilization of resources. Whatever resources, the people working in an organization, the machines are there, the materials, the raw materials are there, they are considered to be scarce. But whatever is with the organization, whatever resources are there, they should be utilized to optimally, means at their best, without wasting the resources. उनका efficient utilization should be there and there should be reduction in the wastage. नुकसान नहीं होना चाहिए. Okay, so in scarce inputs like men, materials, there should be efficient use of them, waste reduction, that should be optimum utilization of these things. Next is innovation. That is the soul of the business. Why? Because every business has to succeed only with the new innovation. आप दूसरे ब्रांड को कॉपी करके कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सीड नहीं कर सकते. ठीक, तो यू हैव टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू इनोवेशन. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको न्यू मेथड्स लेकर आने हैं फॉर ग्रोथ. आपने देखा होगा कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, दे हैव डिफरेंट देयर ओन टेस्ट. उनका खुद का ही टेस्ट है, वो दोनों सिमिलर नहीं होते हैं. इफ़ यू विल अंडरस्टैंड द yippee है, मैगी है, दो अपने अलग अलग टेस्ट हैं. दैट इज़ वाई दे आर सर्वाइविंग इन द मार्केट. ओके, तो दिस इज़ नोन एज इनोवेशन. द न्यू टेक्निक्स हैव टू बी इनोवेटेड. आप नए नए मेथड्स लेकर के आओगे मार्केट में. satisfying the human needs or the customer needs. Yes, business has to satisfy the human needs. Consumer standard of living should be improved, hence there should be continuous demand in the market. So satisfying the needs of the consumer is improving the standard of living, that will help in sustained cycle or improving the business. Then next is social objectives. Social objectives, जब भी कोई word आता है social, that is related to the society. आप सब कुछ कर रहे हो दैट इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी. तो सबसे पहला इज़ टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस टू द कंज्यूमर्स. जैसे अनअडल्टरेटेड क्वालिटी होनी चाहिए. अडल्टरेटेड जो मिलावट वाला है, अनअडल्टरेटेड जो मिलावट वाला नहीं है. तो साफ सामान शुड बी देयर एंड इट शुड बी एट रीजनेबल प्राइसिंग. Then
to offer employment opportunities to persons who have requisite qualifications. Yes, business should always be, अगर कोई इंडस्ट्री किसी एक नई जगह पर ओपन हो रही है तो पीपल नियर बाय आर होपफुल, अनएम्प्लॉयड पीपल स्पेशली आर होपफुल कि वहाँ पर मुझे जॉब मिलेगी उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो बिजनेस शुड बी सच जो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकता हो. ठीक, रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस, recruitment operations must be clean, fair and completely free from discrimination on the basis of religion, caste or social status. मेरा कोई भी relative friend is coming to my organization, I am not the person जो उसको appoint कर ले until and unless he goes through all the stages of recruitment and selection. Okay, so this is known as the social objective. Next is to do work for the welfare of the people. You should give fair living wages. There should be safe workplace and upskilling. पर्सन के ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसको देना चाहिए. देयर शुड बी फेयर वेजेस, देयर शुड बी मेडिकल कवरेज, देयर शुड बी सिस्टमैटिक अपस्किलिंग चैनल्स कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम कर रहा है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करे उसके खुद के जॉब स्किल्स में. वट एवर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ देयर, वो इम्प्रूव होना चाहिए. Okay, next is to create employment opportunities that I have already explained you. Then the next one is to develop healthy relations with the workers and the unions. So the people, the organization or the employer, उसके relations healthy होने चाहिए with the workers and the employers. Workers should consider employers as their father figures. Employers should consider workers as their family. So there should be open and very fair and good relations between them. ठीक, next after that is to avoid antisocial and unfair trade practices. Such practices which are involving होर्डिंग, सामान की आर्टिफिशियल स्कासिटी करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, सर्कुलेटिंग मिसलीडिंग कस्टमर्स एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी देयर. मतलब ऐसी एडवर्टीजमेंट्स देना कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट को क्लेम ही नहीं कर पा रही हैं. प्रोडक्ट कहता है कि मेरे जो ब्यूटीफुल हेयर है वो और ब्यूटीफुल हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट हैपनिंग. सो these unfair trade practices should not be done by the business. Next is to observe the restraints imposed by the society on production and distribution of goods like liquor and weapons. So जो चीज़ें अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं करनी है मीन्स नहीं करनी है. until and unless you have a license you cannot freely distribute these products. ठीक, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रोडक्ट्स. तो ये चीज़ें इलीगली कभी भी नहीं होनी चाहिए. Then to pay the taxes to the government, obviously honest tax filing, so that state revenue comes, so that state revenue is utilized for further infrastructure ऑर्गेनाइजेशन के और द इकॉनमी के जो भी मेट्रोज़ हैं, फर्दर डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो बनने चाहिए, बिकॉज थ्रू विच दैट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन द प्रॉपर टैक्सेस आर बीइंग पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so this is the entire chapter that I have explained you. तो जितने भी economic focus area and social focus area, that is for earning profit and for delivering reliable unadulterated items. Market should be creating customers through strategic satisfaction. Here it should be fair trade, guidelines given, resource optimization should be there, material tools talents में, and here should be fair job recruitments. Development in continuous research and development innovation should be there. Here robust worker safety, fair living wages should be there. Then civic objectives जब हम consider करते हैं तो meeting baseline human needs, and here paying statutory taxes honestly. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. जो सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, ये आपको समझ में आ गया कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के फीचर्स क्या होते हैं, बिज़नेस वर्ड कहाँ से शुरू होता है, and being busy means business, and then the objectives of the business. I hope this much is clear to you. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends. Keep preparing. Best wishes. Thank you.